People say, who is Holy Spirit? कई लोग पूछते हैं पवित्र आत्मा कौन है? Holy Spirit, very easy. Holy Spirit is a God. पवित्र आत्मा परमेश्वर है। Holy Spirit is a God. परमेश्वर है। The Father and the Son and the Holy Spirit. पिता पुत्र पवित्र आत्मा। They are God. वो परमेश्वर है। They are one. वो एक है। But their work, their personality are different. उनका काम अलग अलग है। God, Jesus is come as a human being यीशु मसीह एक इंसान बनके दुनिया में to आए save our life. हमारे जीवन को बचाने And the के लिए। God Almighty, और जो महान परमेश्वर who है, is the head, जो सर है, who function in the life जो of हर किसी के जीवन में काम करता है, the God, the Holy Jesus, the Holy Spirit. तो परमेश्वर पुत्र पवित्र आत्मा। And through Jesus Christ, और यीशु मसीह के द्वारा we receive Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा मिलती है। So Holy Spirit is God. पवित्र आत्मा खुद And परमेश्वर। Holy Spirit is not a spirit and ghost, परमेश्वर जो पवित्र आत्मा कोई आत्मा नहीं, कोई भूत नहीं है, but they are God. पर वो परमेश्वर है। They are one. वो एक है। I already said we have so many body. जैसे पास्टर ने पिछले बार बताया कि हमारे शरीर में अलग-अलग We have a अंग होते body हैं, part. अलग-अलग अंग होते हैं। My hand is working different. हाथ का काम अलग होता My है, leg working different. पैर का काम अलग होता है। Your hand cannot work like your leg. आपके हाथों पर आप चल नहीं सकते जैसे पैरों का इस्तेमाल करते हो। Your head is different. आपके सर का काम अलग Your है, hand work is different. हाथों का काम अलग Your है, leg is different. पैरों का काम अलग है। But we cannot say this is your hand. We cannot separate it. हम इन तीनों को अलग नहीं कह सकते, But we are one पर body. ये सब मिलके एक शरीर बनता है। So God the Father and the Son Holy Spirit, they are one. ऐसे ही पिता पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है, But the functioning is different. पर अलग-अलग काम है, Their work are different. अलग-अलग काम है। But they are God. They are same power, same authority, same anointing, same glory. पर एक ही महिमा है, एक ही अधिकार है, एक ही सामर्थ्य है। So you cannot say that Jesus is lower than Holy Spirit, आप ये नहीं कहते कि पवित्र आत्मा जहाँ शक्ति है यीशु मसीह में कम है। or you cannot say the Holy Spirit is higher than Jesus. आप नहीं कह सकते कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह से बड़ी है, Jesus and the Holy Spirit higher than God the Almighty. या फिर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा बेहतर है यहोवा परमेश्वर से। You cannot say that my head is better than my leg. आप नहीं कह सकते कि अरे मेरे सिर की मुझे ज्यादा जरूरत है, हाथों की तो जरूरत नहीं है। No, they all are equally functional. हर किसी का अपना काम है और हर कोई ही महत्वपूर्ण है। So every our body part are functioning very well. तो ऐसे हमारे शरीर का हर एक अंग अलग-अलग काम कर रहा And है। the head is not powerful, leg is not powerful, they all are हम powerful. ये नहीं कह सकते कि पैर में जा सकती है, दिमाग में जा सकती है, हाथ ज्यादा काम आते हैं, ऐसा नहीं है। हर चीज का अपना काम है। So God, the Holy Spirit is a God. तो पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर है, But His functioning is different. पर काम अलग-अलग तरीके से है। Holy Spirit is the one पवित्र आत्मा है who work in our life. जो हमारे जीवन में काम करे। Without Holy Spirit, बिना पवित्र आत्मा you will never know who Jesus is. आप नहीं जान पाएंगे कि यीशु मसीह कौन है। That is how the Holy Spirit works. पवित्र आत्मा काम ऐसा ही है। And to receive the Holy Spirit, पवित्र आत्मा होने के लिए everyone who living in this जो world, भी दुनिया में जी रहा है, they will not receiving the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा को ऐसे ही नहीं पालेंगे। Everyone who are Hindu or Muslim or every kind of religion, हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया में जितने भी धर्म के लोग रह रहे हैं सबको ही पवित्र आत्मा मिल the जाएगा। Bible says they didn't have Holy Spirit. बाइबल कहते हैं उनके पवित्र आत्मा है ही नहीं। How we need to have Holy Spirit? कैसे पवित्र आत्मा हमारे पास होगी? The day that you believe Jesus जिस Christ, दिन आपने यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया, the day that you're born again, जिस दिन आपने नया आपका जन्म the हो day गया, that you accepted Jesus जिस as दिन a आपने यीशु personal मसीह को Savior, अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में अपना लिया, that day, उस दिन Holy Spirit come into your life. पवित्र आत्मा आपके घर में आपके अंदर आ जाती है। पवित्र That is why many people living in this world, और इसलिए बहुत सारे लोग जो दुनिया में जी रहे हैं, they didn't have the Holy Spirit. उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। And when they didn't have, Holy Spirit is the one who carry everything. और पवित्र आत्मा ही है जो हर चीज लेकर घूम रही He है। is the carry. Holy Spirit is. I will talk about the role of the Holy Spirit तो today. आज पास्टर कह रहे हैं पवित्र आत्मा के महत्व की, उनके कार्य की बात So करो। everyone you have a book write on. तो जिसके पास भी किताब है, नोट्स ले रहे हैं, Today I'm going to talk about how role means how the functioning of Holy तो Spirit. आज पास्टर ये बात करें कि पवित्र आत्मा का आखिर कार्य क्या है। The believer life, एक विश्वासी के जीवन, not the non-believer life. अविश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा की बात नहीं कर रहे हो। So today the Holy Spirit is the one who dwell in us. Jesus said that I will go to my Father. तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। In Matthew Psalms of the 14 verse 16. यूहन्ना 14:6 में I will send the Holy Spirit, मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा। and He is a counselor, वो एडवाइस देने वाली होगी, and He is काउंसलर your होगी, helper, मदद करने वाला होगा and He will dwell in you और forever. वो आपके अंदर हमेशा रहेंगे। Jesus said, I come and I'm going. यीशु मसीह ने तो कहा मैं आया था और
ना जाऊं, पृथ्वी को ना छोड़ दूं, तब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं उतरेगी। So when I go, तो जब मैं चला जाऊंगा first is good. तो अच्छा होगा, For the Holy Spirit will come, पवित्र आत्मा आएगी जो, and then He will dwell in you forever. और फिर वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी, तुम्हारे साथ अंत तक। He will never leave you. वो तुम्हें कभी नहीं He छोड़ेगी, will never forsake you. कभी तुम्हें त्यागेगी He नहीं, will never be orphaned. कभी भी आप तुम अनाथ नहीं महसूस करोगे। He will be always with you. वो हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। So for a short while, थोड़े समय के लिए I am going, पर यीशु मसीह ने कि मैं तो जा रहा हूँ, and I am going and prepare a place for और you. मैं इसलिए जा रहा हूँ ताकि Don't तुम्हारे forget. लिए जगह तैयार कर सकूं, And I will come back, और मैं वापस आऊंगा the place that I am, जिस जगह पर मैं हूँ, and you also be there one day. तुम भी वहाँ पर एक दिन हो पाओगे। Amen. आमीन। And listen nicely, because God always speaks. And then when you know the Holy Spirit, your life will be a living and fullness of life. तो पास्टर कहते हैं इसको ध्यान से सुनिए कि अगर आप पवित्र आत्मा के कार्यों को समझ जाएंगे तो अपने जीवन को और बेहतर तरीके से जी पाएंगे। And every Sunday standing here, every Friday standing here, all the time God speaks in different तो ways. पास्टर कहते जब भी शुक्रवार को या इतवार को प्रचार होता है तो हमेशा परमेश्वर अलग अलग तरीकों से बात करते We हैं, never repeat the message. कभी भी एक संदेश दोबारा नहीं बोला जाता। So this might be coming back, but I might not be repeat. The Lord will speak another thing. तो आज पास्टर से बात कर रही है पवित्र आत्मा के कार्यों की या फिर उसकी महत्वता की विश्वासी के जीवन में। हो सकता है कुछ समय के बाद पास्टर पवित्र आत्मा की भी बात करे दोबारा, लेकिन वो यही संदेश रिपीट नहीं होगा, Because always God give the message. क्योंकि परमेश्वर हर बार संदेश देते हैं। It's not that I know Bible, I don't know Bible. पास्टर ये ऐसा नहीं है कि मेरे को पूरी तरीके से बाइबल आती है, But God always speak to us to read. लेकिन परमेश्वर अलग अलग तरीके से बात करता है कि वो इनके द्वारा आपसे बात करता है। So this last one I really want to speak about the Holy Spirit. तो पास्टर कह रही पिछले महीने से मैं बहुत ज्यादा पवित्र आत्मा के बारे में बात करना चाह रही थी, But the Lord said no, speak about forgiveness. तो पास्टर को परमेश्वर ने बोला कि नहीं, अब तो माफी के बारे में बात करो, Until and unless the person he didn't forgive it, क्योंकि कोई व्यक्ति जब तक माफ ना कर दे how can they receive the Holy तो Spirit? पवित्र आत्मा कैसे देगा। So Christian life has everything step by step. तो हर मसीह के जीवन में हर चीज एक एक चरण में आती है। So now, Holy Spirit is a God. तो पवित्र आत्मा परमेश्वर Today है। we are going to talk about His function, तो आज हम उनके कार्यों की बात करें, His role. उनके रोल की बात What करें। is my role in Rehoboth Church? तो जैसे कि हम देखते हैं कि पास्टर का रेहोबोथ चर्च में क्या काम है, What is my role in Rehoboth Church? पास्टर का क्या काम है रेहोबोथ What में? is my position? पास्टर क्या करती है? Everyone open your mouth now, you see, huh? Yes, my role is a pastor. वो पास्टर है, वो प्रचार करती है, आप लोग चर्चा सोच रहे हैं करती है। मणिपुर सोच रहे क्या? Come on here, wake up. So my role is a pastor. तो पास्टर कह रही है कि मेरा काम यहाँ पर पासवानी करने का। God has appointed and ordained to be the pastor in this church. तो परमेश्वर ने पास्टर को एक पास्टर के तौर पे नियुक्त किया है। It is not me. ये पास्टर नहीं है, So this is my role. ये पास्टर का काम है। So what is the role of the pastor? तो एक रोल का पास्टर का क्या रोल है To feed the sheep, कि अपनी भेड़ों को चराना, to the word of God, परमेश्वर का वचन देना, to grow in the word of उन्हें God, प्रभु में बढ़ाना, to get salvation, उन्हें उद्धार दिलाना to deliver, और छुटकारा देना, and to fill by the Holy और Spirit, पवित्र आत्मा के द्वारा उनके कार्य and to करना, function the God's और house. परमेश्वर के घर को सही तरीके से चलाना। And God is our shepherd. परमेश्वर हमारा चरवाहा है। So under the leadership, तो परमेश्वर की अगुवाई के नीचे so He wants us to function वो inside चाहते the हैं church. कि हम कलीसिया के नीचे अंदर काम So करें। pastor role is that inside the church. तो पास्टर का काम कलीसिया के अंदर होता है। Evangelist role is that outside the जो church. इवेंजलिस्ट होते हैं उनका काम कलीसियाओं के बाहर होता है। They go to place and उन्हें preaching अलग the अलग gospel. शहरों में, अलग अलग कलीसियाओं में जाकर, अलग अलग गाँव में जाकर प्रचार करना होता है। Missionary come is that they go to another country to country. जो मिशनरीज होते हैं वो दूसरे देशों में जाते हैं। So there is so many roles inside the church. आप ये देखिए कलीसिया के अंदर अलग अलग लोग हैं, So अलग अलग काम pastor हैं। cannot take the role of evangelist, role of missionary. If pastor go out, then what will be the church? What will be the sheep? तो पास्टर का काम ये नहीं कि इवेंजलिस्ट की तरह या फिर एक मिशनरी की तरह चर्च छोड़ो और दूसरे चर्चों में जाके प्रचार करो। अगर पास्टर ही चली गई तो यहाँ पर कौन अगुवाई करेगा? So the sheep will scatter तो भीड़ तो खो जाएगी without shepherd. बिना चरवाहे की। That's why God is giving everything in order. इसलिए परमेश्वर ने हर चीज का एक काम रखा है। So God has given us a prophet. परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता भी दिए हैं। Prophet is the bringing the message to the people भविष्यद्वक्ता वो होता है जो परमेश्वर का संदेश लोगों के पास to लेकर आता है edify him. ताकि वो उनको बेहतर बना सके। And what is the speaking in tongue? और अलग अन्य
God तारे everything. हर एक चीज तरीके से बनाई। Morning, सुबह के समय, afternoon, दोपहर को, evening. शाम को, He created everything उन्होंने organized. हर एक चीज को सही समय पे काम करते। If God is not organized, अगर परमेश्वर ऑर्गेनाइज ना करे, morning become night, सुबह के समय चांद आ जाएगा, afternoon become morning. दोपहर के समय कुछ और अंधेरा हो What जाएगा, will be our life? तो आप देखो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा। Today many people they don't know how to organize life. आज लोगों को, बहुत से लोगों को जीवन को ऑर्गेनाइज करना नहीं आता, That's why their life mess up. और इसलिए उनका जीवन भी एकदम गड़बड़ी का They है। don't know how to live. उन्हें जीवन जीना नहीं They आता, have disorganized their life. उन्हें अपने जीवन को सही तरीके से नहीं चलाते। Sleeping time not sleeping. सोने के टाइम तो नहीं सोते हैं, Eating time not eating. खाने के टाइम खाते नहीं है, Working time not जब working. काम करना तो काम नहीं करते। The end of their life what you will और get? जीवन के अंत में क्या मिलता है? Sickness. बीमारी। If you are not working, काम नहीं करोगे, poor. गरीब हो जाओगे, So many things will mess up. कितनी चीजें खराब हो जाएगी। So everything we should, our own life is to organize. तो हमारे जीवन में हर एक चीज हमें ऑर्गेनाइज करना Because चाहिए, God is the God of क्योंकि organize. परमेश्वर भी वो है जो हर चीज को ऑर्गेनाइज करते हैं। God, the day that we come into this world, जिस दिन हम इस दुनिया में आते you हैं, never see the morning change. आपने कभी नहीं देखा कि आज सुबह को सुबह ही नहीं हुई। You never see the season change. आप ये नहीं कहते अरे गर्मियों में तो सर्दियां आ गई, Now ऐसा the नहीं होता। summer coming. अब जब गर्मियां हैं, Summer we need that. तो गर्मियों की भी हमें There is जरूरत a है। God knows इसलिए everything. परमेश्वर को हर चीज पता है, And there is the owner who functioning. तो एक मालिक है जो हर चीज को सही सही तरीके से चला रहा है। Same manner. इस तरीके से God wants us also. परमेश्वर हमसे भी So चाहता है। now Holy Spirit तो पवित्र आत्मा is a role. उसका काम है, He have a work. एक काम है। So who is the Holy Spirit? तो पवित्र आत्मा He कौन is है? a God. वो परमेश्वर है, And his role is और that उनका काम ये है, the Holy Spirit पवित्र आत्मा will dwell वो रहती है inside the true Christian. एक असली मसीह के अंदर ही। पवित्र आत्मा Holy है। Spirit is not dwell the not the true Christian. जो लोग असली मसीह नहीं है, जो नाम के मसीह हैं, उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं रहती। I always say, what is the meaning of Christian? पास्टर हमेशा कहती है मसीहत का, या फिर In the book of Acts chapter 11 verse 25. प्रेरितों के काम के अंदर 11वें अध्याय के 26वें वचन में Christian is the oh I'm a Christian. हम कहते हैं हाँ मैं मसीही हो गया। No. ऐसा नहीं है। When the disciples were in the city of Antioch, जब यीशु मसीह के चेले अंतोकिया के अंदर थे, they were walking. वहाँ पे काम कर रहे थे। Completely they are different from others. उन लोगों का चाल चलन, रहना सहना, बात करने का तरीका बाकी They लोगों were से living a अलग holy था। life. वो पवित्र जीवन जीते They थे, were loving लोगों people. से प्रेम करते They थे, were organized. वो सही तरीके से काम करते थे। And outside the people see, और बाहर के लोग जब उनको देखते थे, oh these people are Christian. अरे ये लोग क्रिश्चियन हैं, From there the Christianity. और वहाँ से क्रिश्चियनिटी नाम आया। You read all the Old Testament. अगर आप पुराने नियम पढ़ेंगे बाइबल में, You will never see Christian. कहीं पर भी मसीहत शब्द नहीं Only in है। the book of Acts you will see. सिर्फ आप देखिए प्रेरितों के काम में ही So now, शब्द when आता the है। book of Acts, जब प्रेरितों के काम की 11वें अध्याय में chapter पढ़ते हैं, 1, verse 8, अगर आप प्रेरितों के काम के पहले अध्याय के 8वें वचन पढ़ेंगे, the Bible says, बाइबल कहती है Jesus told them, कि यीशु ने कहा I am going कि मैं जा रहा and हूँ I will send the Holy और Spirit मैं पवित्र आत्मा को भेज रहा हूँ। and go into the world. उसके बाद तुम दुनिया में You जाओ, will be anointed. तुम अभिषेक पाओगे, Preach the gospel. सुसमाचार बांटना, Those who believe, जो विश्वास करे baptize them बपतिस्मा दे in देना, the name of the Father, पिता के नाम in the में, name of the Son, पुत्र के नाम in में, the name of the और Holy पवित्र Spirit. आत्मा के नाम में। And in the Matthew chapter 28, और मत्ती 28 में भी, verse 19-20, 19-20 में, I have given all the power and परमेश्वर authority. कहते हैं मैं तुम्हें सारा सामर्थ और अधिकार Go दे दिया into the है world. कि दुनिया में जाओ, Preach the gospel. सुसमाचार बांटो, I will be always with you मैं till the end. हमेशा तुम्हारे साथ हूँ दुनिया के अंत तक। So that is the three people they are knit together. तो ये तीन चीजें हैं जो साथ में आती हैं। So the Holy Spirit, तो पवित्र आत्मा, the role of the Holy Spirit तो is पवित्र that आत्मा का काम He will dwell inside the believer, वो एक विश्वासी के जीवन में होती है, not the non-believer. अविश्वासी के जीवन में नहीं। So when the Holy Spirit comes, तो जब पवित्र आत्मा आती है, you become extraordinary. आप कुछ अलग असाधारण हो जाते You हो, become more powerful, ज्यादा सामर्थ आ more जाता है, anointed. ज्यादा अभिषेक आ The जाता है, things that you cannot जो do चीजें आप नहीं कर पाते हो, by the power of the Holy लेकिन जब Spirit, पवित्र आत्मा आती है you will do. आप कर पाते हो। When the Holy Spirit comes inside you, पवित्र आत्मा आपके अंदर आती He है, will reveal to you वो आपको क्या दिखाती है who is कि God. परमेश्वर कौन है। That is why today many people know Jesus. और इसीलिए बहुत सारे लोग यीशु मसीह को जानते They know हैं, their name, वो अपना नाम जानते but हैं, they don't know they didn't have Jesus Christ, Holy Spirit. वो ये तो जानते हैं कि मेरा नाम क्या है, लेकिन मेरे अंदर पवित्र आत्मा रहती है, नहीं पता, That is why they don't know who Jesus is. और इसलिए वो यीशु को भी नहीं जानते। यीशु मसीह मालूम है सारे जगह में, लेकिन उन लोगों के पास यीशु मसीह नहीं है, नया नाम मालूम है, लेकिन उन लोगों का अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग का मालूम करने का होली स्पिरिट चाहिए। एंड होली स्पिरिट का हम लोग का लाइफ में आना का कैसे करना है?
यीशु मसीह को विश्वास करना है। विश्वास आते हैं तो यीशु मसीह होली स्पिरिट पवित्र आत्मा का अंदर आते हैं, लेकिन हम विश्वास नहीं है तो होली स्पिरिट नहीं आता। So that is the thing that when the Holy Spirit comes, तो जब पवित्र आत्मा आती है you will realize आप समझ जाते हो that you are the sons and daughter of कि God. आप परमेश्वर के बेटा और बेटी Now हो। you will become convinced in your life आप अपने जीवन में समझ जाते हो when the Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा आएगी when you accept Jesus और Christ. जब यीशु को अपना लोगे Now your old lifestyle is completely तो मतलब different. पुराना जीवन जीने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाता है। Before आपको गलत बोलना, गलत काम करना, गलत चीज खाना मालूम नहीं था, खाते रहते थे इस दुनिया है, इस जगत में, लेकिन आपको क्या गलत है क्या सही नहीं है ना। लेकिन हॉली स्पिरिट आते हैं हम बताने के लिए, पास्टर बताने के लिए, कोई इंसान बताने के लिए जरूरी नहीं है। हॉली स्पिरिट आपको बताएंगे ये गलत है मत खाओ, ये गलत है मर्डर मत करना, काला जादू मकाम का मत करना, आइडल वर्शिप मत करना, ये करना। हॉली स्पिरिट अंदर से आवाज आता है। देन कभी ड्रंका होते हैं तो वो प्रभु को मानते हैं तो अचानक से चेंज करते हैं। आप कितना दवाई दे दो, आप कितना आश्रम चलो, काउंसलिंग ले लो, पवित्र आत्मा नहीं आते तो अपना शक्ति से, अपना पावर से खाना पीना, दारू पीना सारे नहीं छोड़ सकते। लेकिन हॉली स्पिरिट आते हैं तो इंसान अचानक से चेंज होते हैं। So that is how the Holy Spirit तो works. ऐसे ही पवित्र आत्मा काम करती है। And then the Holy Spirit is only work and only dwell in the life of the people who are truly Christian. तो पवित्र आत्मा सिर्फ उनके जीवन में रहती है जो सच्चे मसीही हैं। That is why Jesus, the Holy Spirit said, इसलिए पवित्र आत्मा कहती है, turn to 1 Corinthians chapter 3 verse 16. खोलते पहला कुरिन्थियों 3:16। 1 Corinthians chapter 3 verse 16. The Holy Spirit inside you and then also the body of the faithful Christian become the temple of the Holy Spirit. तो हम खोलते हैं पहला कुरिन्थियों। Yes, read that one. Very, very famous and very easy. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. पहला कुरिन्थियों 3:16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? पेज नंबर 230। So everyone read. तो हर कोई से पढ़े नए नियम की किताब पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 16वां वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? Amen. The Bible said, everyone said, do you know that? हर कोई बोले क्या तुम जानते हो I am the temple of the Holy कि Spirit. मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। I am the temple of the Holy मैं Spirit. पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। So the Bible said, बाइबल क्या कहती है? this house is not the temple of the कि God. ये घर परमेश्वर का मंदिर नहीं है। How become a temple of God? ये घर परमेश्वर का मंदिर कैसे बनता है? Listen everyone. This house become the temple of God ये घर परमेश्वर का घर क्यों कहलाता है? because क्योंकि you and I are here. क्योंकि आप और मैं यहाँ पर हैं। That is why this become a church. इसे कलीसिया कहा जाता है। But if you are not coming, अगर आप यहाँ पर बताओ if I am not coming, पास्टर भी यहाँ है, this will call a basement. इसको बोलेंगे तो बेसमेंट है, This call a house. ये तो घर है। But this become a church फिर चर्च क्यों कहते हैं? because we are the temple. क्योंकि हम परमेश्वर We का come मंदिर in हैं। this जब ये way. सारे मंदिर आते हैं हम लोग साथ में, That is why this is the church. तो कलीसिया बनता So है। now the Bible say, बाइबल कहती do है, you know that you are the temple of the Holy क्या तुम Spirit? नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर So हो? Holy Spirit is not here. तो पवित्र आत्मा यहाँ पर नहीं, Holy Spirit in you. पवित्र आत्मा आपके अंदर रहती है। Everywhere that you are. आप कहीं भी जाओ, You are in the house. आप घर में होते हो, That is the temple. परमेश्वर का मंदिर You है। are in your office. आप ऑफिस में You हो, are in your job. अपनी नौकरी That is में, the temple. परमेश्वर का मंदिर Now बन this जाता become है। a temple. और ये मंदिर बन गया Because we are here. क्योंकि आप और मैं यहाँ पर जो We है, are carrying the Holy क्योंकि हम Spirit. पवित्र आत्मा को लेकर घूम रहे So हैं। now we come together. अब हम साथ में That's आए, why this become the house of God. इसलिए परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर का घर कहलाता है। That is why Holy Spirit dwell in us. और पवित्र आत्मा हमारे So अंदर that's रहती why the है। Bible says the Holy Spirit, the role of the Holy Spirit is to dwell in you. तो पवित्र आत्मा काम क्या है कि वो आपके अंदर रहे। So when the Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा आती you है, become the temple of God. आप परमेश्वर का मंदिर बन जाते हो। Everyone say, I am the temple of हर कोई God. बोले परमेश्वर का मंदिर हूँ, Holy Spirit dwell inside पवित्र you. आत्मा मेरे अंदर रहती है। Everyone say soundly, I am मैं हूँ the temple of the Holy Spirit. परमेश्वर की आत्मा का मंदिर। So we are so privileged to become the temple of तो God. हमारे बहुत बड़ा आशीष है कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। We are not the temple of idol. हम मूर्ति पूजा का मंदिर नहीं है, We are not the temple of sickness. हम बीमारियों का मंदिर We नहीं are not है, the temple of God and goddesses. हम देवी देवताओं का मंदिर We नहीं are है, not the temple of poor. हम गरीबी का मंदिर भी We are नहीं not है, the temple of Satan. हम शैतान का मंदिर, We are the temple of the Holy हम Spirit. पवित्र आत्मा का मंदिर है। So that is the role of the Holy Spirit that He will come and dwell in us. तो
the temple of अब God. आप परमेश्वर की आत्मा का मंदिर बन जाते हैं, Because क्योंकि Holy Spirit come and dwell in you. पवित्र आत्मा आपके अंदर की खुद That is why 1 Corinthians chapter 3 verse इसलिए पहले 16. कुरिन्थियों 3 के 16 में क्या लिखा The है? Bible says, do you know? क्या तुम नहीं जानते? The Bible says, do you know? बाइबल लिखा है, क्या तुम नहीं जानते? You don't know. नहीं जानते क्या? You are the temple of the अरे Holy तो पवित्र Spirit. आत्मा का मंदिर हो, So don't defile the Holy Spirit. तो आप पवित्र आत्मा को गंदा मत करो, Don't defile your temple. अपने शरीर को गंदा मत करो, Because you are the Holy Spirit temple. क्योंकि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा रह जो रही You are है, the house of God. तुम परमेश्वर का घर बन चुके Your हो, body is the house of तुम्हारा God. शरीर परमेश्वर का घर है, But in this house, पर इस घर के अंदर if you put क्या है cow dung, buffalo dung, क्या है गाय का सारी चीज डालेगा तो कैसे होगा? गंदा होगा, स्मेल होगा. आप प्रभु नहीं रख सकता. ये घर पे हम चर्च में आया, सारे गाय का बकरी का काट कर दिया और आपका पोती पोता इधर कर दिया, तो आप कह रहे सास इतना गंदा नहीं जाएंगे, निकलेंगे ना. So Bible say you are the temple of God. कि तुम भी पवित्र आत्मा का मंदिर हो, Be holy. तो अपने आप को पवित्र और साफ रखो, But if you are not clean, पर अगर हम साफ ना रखें, God cannot dwell. परमेश्वर नहीं रह सकता. How we will not clean? कैसे हम साफ नहीं रखते? Drink करते, खाते, लड़ाई करते, गुस्सा करते, सारे निगेटिव करते, तो प्रभु आएंगे. "शरीर इतना गहरा, इतना गंदा, मैं नहीं रख सकता, इतना गंदा घर है." प्रभु नहीं रख सकता, निकल जाएंगे. But if you clean all the लेकिन time, अगर हम अपने आप को हर समय साफ रखें, there's like every day I come to church. पास से जब भी मैं चर्च आती हूँ, Before I start, शुरू करने से पहले, whether these people clean Sunday or not, चाहे लोग संडे को सफाई करें या ना करें, I always clean this church. पास से हमेशा चर्च साफ करती हूँ, Because God is dwelling in clean कि place. परमेश्वर साफ जगह में ही रहते हैं, God is not dwelling in a dirty place. परमेश्वर गंदी जगह पे नहीं रहते हैं, And God wants to dwell. We are the temple. और हम भी परमेश्वर के आत्मा का मंदिर हैं. So He don't want to dwell if your body is dirty. तो अगर आपने अपने शरीर को गंदा रखा है, परमेश्वर उसमें भी नहीं रहना So पसंद how करेंगे. your body become dirty? तो कैसे अपने शरीर को हम गंदा करते हैं? Lie, झूठ hatred, बोलते हैं, envy, गालियाँ देते हैं, jealousy, जलन करते हैं, drinking, व्यभिचार all करते kinds of हैं, things. शराब पीते हैं, Then your body become dirty. तो शरीर गंदा हो जाता है, And God cannot dwell. तो परमेश्वर भी So नहीं the रह Bible सकते. saying, that is why you say, do you know that your body is तो यहाँ पर temple? क्या लिखा? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम नहीं जानते, मतलब ये तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो. So God say, if you dirty, परमेश्वर कहता है तुम गंदे रहते हो, if you are not the Holy Spirit is not functioning. अगर तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा काम नहीं हो रहा, So the God is questioning us. तो परमेश्वर पूछ रहे हैं हमसे, Rohit, do you know that your body is a temple? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? So if you know, then why you are putting all kind of dirty things? और अगर तुम जानते हो तो तुम अपने अंदर क्यों गंदी चीजें डाल रहे हो? That is what God is asking. ये परमेश्वर पूछ रहे हैं. He said, do you know? परमेश्वर कहते हैं, तुम नहीं जानते क्या? Your body is a temple of तुम्हारा the Holy शरीर पवित्र Spirit. आत्मा का मंदिर Holy है. Spirit is not outside. पवित्र आत्मा बाहर नहीं रहती He है, is inside. वो हमारे अंदर है. That is His role. इसका काम है अंदर To रहने का, dwell in कि वो us. हमारे अंदर रहे, Then He will function ताकि वो काम कर सके and He will come out. और वो बाहर आ सके. How you, when the Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा अंदर आती है, you will see the person तो उसके change. काम बाहर दिखाई The देते हैं. person वो व्यक्ति transforms. बदल जाता है, The person sins. वो व्यक्ति का बात करने का तरीका बदल The जाता है, character. उसका व्यवहार, The behavior. उसका चरित्र बदल जाता है. पहले वो बहुत गंदा था, लेकिन when the Holy Spirit comes, लेकिन जब पवित्र आत्मा आती है, now the person become loving one तो another. वो एक व्यक्ति एक दूसरे प्रेम करने The लगता है, person forgive. किसी को माफ The करता है. person anger था, now पहले तो no. बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब गुस्सा आना कम Now हो the जाता है. person a kindness, अब दया दिखाता है, self control. अपने पर नियंत्रण रखता है. So that is how the Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा ऐसे That is His role. इसका काम है. So Holy Spirit is dwelling in तो us, पवित्र आत्मा हमारे अंदर and we रहती है, become the temple of और God. हम परमेश्वर का मंदिर बन जाते हैं. Amen. And then also when the Holy Spirit comes, तो जब पवित्र आत्मा आती है, He will bring the fruit. तो फल लाती है. What is the fruit of the Holy Spirit? पवित्र आत्मा के फल क्या है? नाविन, what is the fruit of the Holy Spirit? आप संदेश को पहले मेरे को बताया था. बताओ, stand up. जोर से. कितना था? So there is the fruit of the Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा के ये फल है. So when the Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा आती है, He will produce fruit. वो फल लाती है. See, if you are planting something, अगर आप किसी भी चीज का बीज अगर उगा दो, if you are not bringing fruit, अगर उसका फल ना आए, or you are planting apple, मान लो आपने सेब का बीज you लगाया are planting mango, या आम के बीज लगाया, 15 साल इंतजार करा था, 10 साल इंतजार करा था, फल नहीं आया, तो आप कैसे करते? मम्मी आप कैसे कहते हैं फल
नहीं आते तो टेरेस में इसको डाल दिया, नहीं आते तो आप कैसे करते हैं? कार की फेंकते हैं, और फेंकते हैं तो कैसे होते हैं? सूखते हैं, ड्राई होते हैं, सूख जाता है। सूख जाते हैं। सूख जाते हैं तो कहाँ है? आग जलाते हैं, डस्टबिन जाते हैं, डस्टबिन जाते हैं तो सारे गायब हो गए। So now, if the same thing in our life, तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है। the Bible says if you are not bear fruit, बाइबल कहती है कि अगर तुम प्रभु में आने के बाद फल न लाओ, God will cut it one प्रभु day. काटते काटते। That Jesus one day he was way to Jerusalem, एक बार यीशु मसीह यरूशलेम जाते हैं and early in the morning, और सुबह के समय the disciple went. तो चेले क्या They चाहते were so hungry. चेलों को बहुत भूख Before लगी they थी। died, he saw the tree, तो यीशु मसीह को बहुत भूख लगी थी, तो वो एक पेड़ को देखते हैं and he come near to the tree. और उस पेड़ के पास आते हैं। The tree was no वो fruit. उम्मीद से आते हैं कि इसमें फल लगे होते हैं, लेकिन फल नहीं लगे होते हैं, तो यीशु मसीह उस पेड़ को श्राप दे देते हैं। The example said, Bible said immediately the tree तो dried, बाइबल कहती है जैसे यीशु मसीह श्राप देते हैं, अचानक से वो पेड़ एकदम सूख जाता है। and the disciple हैरान हो गए। चेले हैरान हो जाते हैं, Wow, कितना शक्ति है! Even the tree that can dry right now. अरे अभी श्राप दिया, अभी सूख गया, कितनी बड़ी शक्ति So है। when the Holy Spirit comes, मुझे पवित्र आत्मा आती है, when you are accepted the Holy Spirit and you know the Holy Spirit is dwelling in you, जब आपने यीशु मसीह को अपना लिया और आपको पता है पवित्र आत्मा and कैसे when रहती है, you allow to take over your और life, आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा काम करने भी देते हो, He will bring the fruit. तो फल लाएगी ही Let लाएगी। us turn to Galatians. खोलते गलातियों की किताब, Galatians chapter 5, गलातियों की किताब 5वां अध्याय, the fruit of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के फल। So you will bring the fruit in your body. तो वो आपके शरीर में, आपके जीवन में फल लाएगा। Yes, read verse 22. गलातियों 5 का 22 पेज नंबर सब लोग 263। खोला करो, Galatians और सब लोग बाहर करो, बहुत important है। Galatians chapter 5 verse 263 पेज नंबर नया नियम, बुक ऑफ गलेशियंस, गलातियों 5 का 22। पर आत्मा का फल, पहला प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। Amen. आमीन। See now the way the Holy Spirit comes into your जब life. पवित्र आत्मा आपके अंदर आती है, This is the fruit of the Holy Spirit. ये फल पवित्र आत्मा के हैं। Everyone say this is the fruit of the Holy हर Spirit. कोई बोले ये पवित्र आत्मा के फल है। Outside. बाहर, No. Inside of you. ये फल बाहर नहीं आपके अंदर टंगे हुए दिखाई You are देंगे, the body of the temple of the Holy क्योंकि Spirit. आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो। When you allow the Holy Spirit to dwell, जब आप अपने अंदर पवित्र आत्मा काम करने then देते you हो, will bring the fruit. तो फल लाने लग जाएगी। पहले आप गुस्सा करते थे, अभी Holy Spirit आपका लाइफ में आया, पेशेंट हो गया, सेल्फ कंट्रोल हो गया। पहले आप सेल्फ कंट्रोल नहीं था, पीना है, खाना है, सेक्स करना है, सारी चीज करता था, कंट्रोल नहीं था। तो पवित्र आत्मा आता है, उसका फ्रूट आता है, then you become self control. तो आप अपने ऊपर संयम रखने लग जाते हो। So the Holy Spirit, 9 Holy Spirit, तो पवित्र आत्मा के 9 फल, He carry the fruit. और पवित्र आत्मा अपने साथ फल भी So लाती when है। the true Christian, तो अगर कोई इंसान सच्चा विश्वासी है, when you believe Jesus और Christ, आप ईश्वर विश्वास you करते become हो, the temple of God. तो पवित्र आत्मा का Now मंदिर you बन will जाते bring हो, the fruit. तो आप फल लाते The हो। first fruit He will bring. तो पहला फल क्या है? What is that? First fruit. पहला फल क्या है पवित्र आत्मा का? प्रेम। Love. Love is very, very तो important. प्रेम बहुत बहुत जरूरी है। Without love, बिना प्रेम के you will never be here. आप यहाँ बैठे भी नहीं हो सकते। You never go to your enemy house. आप अपने दुश्मन के घर क्यों नहीं जाते हो? Love. कि प्रेम नहीं। When the Holy Spirit comes, लेकिन जब पवित्र आत्मा आती है, you will love your enemy. आप अपने दुश्मनों से प्रेम करने लग जाते हो। Bible says love your enemy. बाइबल में तो लिखा है दुश्मनों से प्रेम करो। You will forgive. आप उन्हें माफ कर पाते पहले हो। आप प्यार नहीं था, गुस्सा करता था, लड़ाई करता था, दूसरा को शेयर नहीं करता था, मैं अपना का सोचता था। इंसान प्यार नहीं है ना, अपना का सोचते हैं, मैं खाना है, दूसरा को नहीं देना है, मेरे मेरे मेरे। बट आप प्यार होते ना, मैं नहीं, दूसरा को फास्ट बनता है। So that is how the love is. तो प्रेम ऐसा ही होता है। So the first fruit He will bring, तो पहला फल जो पवित्र आत्मा लाती है, the love. वो है प्रेम। You will love everyone. आप हर किसी से प्रेम करने लग Whether जाते हो। Hindu or चाहे Muslim. वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, विश्वासी हो, See, when विश्वासी I हो। believe in Jesus पास्टर Christ. कहिए, मैंने यीशु में विश्वास किया। पहले तुम्हें हिंदू और मुस्लिम मालूम नहीं था, क्योंकि हम लोग का सारे गांव क्रिश्चियन था, मंदिर भी नहीं थी, मालूम नहीं है क्या मंदिर है, मालूम नहीं है हम क्या हिंदू है। आप लोग हम बोलते हैं मयांग, ठीक है? मणिपुर में हम बोलते हैं मयांग, मयांग में आउटसाइडर ऐसे बोलते हैं। तो मंदिर हम लोग का एरिया में तमिलनाडु में एक मंदिर भी नहीं है, सारे चर्च हैं। तो क्या होता था, मैं बाहर गया तो हिंदू मुस्लिम, तो मेरा को शौक था,
मेरा कहना हिंदू है, मुस्लिम है, ऐसे। लेकिन when I know the Lord, लेकिन पास्टर कहे जब मैंने प्रभु को जान लिया I love people. तो पास्टर कहे मुझे लोगों से प्रेम होने लगा। I love the Hindu. हिंदू लोग भी अच्छे लगते I love the हैं, Muslim. मुस्लिम लोग भी अच्छे They लगते हैं, are one. We have become a one एक family. परिवार लगने लग गया, There is no difference. कोई अंतर नहीं लगता। God loved everyone. परमेश्वर हर किसी से प्रेम करता God didn't hate anybody. है, परमेश्वर किसी को भी नफरत नहीं करते। So love is not no husband, wife, boyfriend, girlfriend. When we love comes, then our mind always तो goes. जब भी हम प्रेम की बात करते हैं हमें पति पत्नी या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही समझ में आता है, लेकिन हम प्रेम समझ नहीं पाते कि परमेश्वर का प्रेम क्या है। If you want to know the love definition, अगर आप प्रेम की परिभाषा समझना 1 चाहते हैं, Corinthians chapter 13. पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय, Love is what? कि प्रेम क्या है, Patient, humble, self-control. कि इसमें धीरज है, दया So we will है। learn it. So love is patient, humble, self-control. All these are the love. तो प्रेम क्या है कि एक दूसरे से आप धीरज रख पाते हो, संयम रख पाते हो, एक दूसरे की समझ पाते हो। So यही when you प्रेम है। love, तो जब आप प्रेम करते हो you will patient with breathing. तो आप सामने वाले के साथ धीरज धर You पाओगे, will forgive your enemy. उसकी गलतियों को माफ कर पाओगे, You will self-control. आप संयम रख पाओगे जब वो गलत होगा। You will share whatever you have. आपके पास जो थोड़ा भी होगा आप सोचोगे पहले उसको दे दो, You will kindness. आप उस पर दया दिखा पाओगे। You will not think for yourself. आप ये नहीं सोचोगे नहीं अच्छा है तो मैं ही रखूं, You will think others to be the first. आप कहेंगे नहीं उसको भी मिलना चाहिए, पहले उसको देना चाहिए। That is how the love is. यही प्रेम है। So that when the fruit of the first fruit of तो the जब Holy पवित्र Spirit, आत्मा आती है तो वो पहला फल आपके जीवन में आता है, वो है प्रेम। love. प्रेम। After you have love, और जब प्रेम होता है what you receive? फिर आपको क्या होता है, Joy. आनंद आता है। See, हम love नहीं है तो कैसे joy आएगा? When you have love, जब आपके अंदर प्रेम होता है there is a joy. तो अंदर आनंद भी आता है। All these things you cannot get the thing, the money. ये सब चीजें प्रेम आनंद आप कहीं जाके मार्केट में मॉल में जाके खरीद नहीं सकते हो। Joy, love you will never get in market. प्रेम और आनंद कभी किसी मार्केट में दुकान पे नहीं मिलता, Joy, love you will never get in your brothers and sisters. भाई और बहनों से भी नहीं मिलता, Joy, love you will never get in your pastor. अपने पास्टर से भी नहीं मिलता। कभी-कभी हम लोग को joy होता है ना अचानक से, like कुछ आपको चाहिए कपड़ा चाहिए, हाँ थोड़ा सा लेकिन निकलता है। So the joy, the love come from only Holy Spirit. सिर्फ प्रेम और आनंद सिर्फ परमेश्वर सिर्फ पवित्र आत्मा से ही आता है। So when the Holy Spirit is तो जब doing in पवित्र you, आत्मा आपके अंदर आती है you will be always joy. आप हमेशा ही आनंदित रहते In हो। the sick time, बीमारी में no नहीं, money, जब पैसा no नहीं होता, job, जॉब भी नहीं है, all things going through, प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, but still there is a पर फिर joy. भी शांति होती है, अंदर There is आनंद a होता है, love. एक प्रेम होता है। But the worldly joy, लेकिन जो दुनिया का आनंद है ना, you want 1 million, आपको चाहिए हाँ आज 1 करोड़ रुपए मिल जाए, अचानक से मिल गया। अरे वाह मिल गया पैसा। हाँ, बाद में क्या? After 1 hour, एक घंटे के लड़ाई बाद। शुरू, pride मेरे पास ये है वो है, no joy. आनंद नहीं रह जाता। Now the enemy will run after you. फिर दुश्मन आपके पीछे भागते हैं, Then now you're putting security फिर आप सिक्योरिटी गार्ड रखते हो। to be secure. अरे 1 करोड़ रुपए जो रख लिया, बॉडी गार्ड भी रखना पड़ेगा पहले तो। But still you didn't have joy. मतलब आनंद और शांति तो है ही नहीं, Still you didn't have love. प्रेम नहीं है। But when the Holy Spirit comes लेकिन in, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आती है, whether people there or not, लोग हो या ना हो, whether you're alone, आप अकेले क्यों ना you रहते हो, will fill with फिर भी joy. आपके अंदर आनंद रहता है। You will never feel आपको lonely. अकेलापन महसूस You will नहीं never होगा, feel frustration. आपको अंदर You फ्रस्ट्रेशन will होती never नहीं, feel pain. आपको दर्द में महसूस नहीं You होगा, will always joy. आपके अंदर आनंद होता है। I see one thing in my father. पास के लिए मैंने एक चीज अपने पापा की लाइफ में My देखी, father always joy. मेरे पास के लिए मेरे पापा हमेशा आनंदित रहते Always हैं, smile. हमेशा Even मुस्कुराते many हैं। people telling me, बहुत लोग पास्टर से भी कहते हैं you always smile. पास्टर आपके पापा तो हमेशा स्माइल करते रहते हैं, Oh, you always joy. हमेशा खुश रहते हैं। So that is when you have Holy तो Spirit, पास्टर कह रहे जब मैंने देखा जब आपके अंदर पवित्र आत्मा होती there will है be joy. आप आनंदित रहते हैं। That is the fruit of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा का फल है। Unless the Holy Spirit in जब you, तक पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं आई you will never find joy. तो आनंद आएगा You will नहीं। never find love. आपके अंदर प्रेम नहीं And the है। second, a third, तीसरी चीज what is that? शांति। शांति. हाँ, मम्मी शांति नहीं है, शांति, ठीक है? शांति आपका साथ बैठा रहे, ऐसा नहीं. शांति मतलब peace. So when the Holy Spirit तो comes, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आती है, हम लोग गलाय में क्या आया? क्या है उनका fruit? शांति। शांति, आनंद. See when the Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा you आती है, need peace, आपके अंदर शांति होती है, no frustration. फ्रस्ट्रेशन नहीं। लेकिन आपके पास Holy Spirit नहीं है, you will be worried. आप चिंता बहुत करो और पवित्र आत्मा नहीं है तो क्या खाना है, क्या पहनना है, चर्च जाना है, क्या पहनाओ, वो सारे मॉर्निंग उठाया frustration, उठाया
क्या खाना है, क्या जल्दी जल्दी मम्मी क्या था पराठा बनाओ, पकौड़ा बनाओ, मम्मी भी जल्दी जल्दी में आग जला दिया, ये जला दिया, आपका वजह से और फ्रस्ट्रेशन में चास आया, शांति भी नहीं, सोन लिया, वो चीज हो। But when the Holy Spirit is लेकिन जब here, पवित्र आत्मा आपके अंदर होती है, no matter what, चाहे कुछ भी हो जाए, you have problem, प्रॉब्लम you have sickness, बीमारियां भी आएंगी, you are alone, अकेलापन your भी mother होगा, die, your father मम्मा die, भी मर your जाएंगे, husband die, your पति wife मर जाएगी, die, पत्नी मर जाएगी, you still get left, बच्चे भी छोड़ जाएंगे, you will have फिर peace. होगी शांति है। He doesn't care all this. अगर कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी होता है। That is the fruit of the Holy ये Spirit. पवित्र आत्मा का And फल है। another thing, फिर चौथी चीज, long suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. All these are the fruit of the Holy Spirit. धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और सही। But I want you to read in verse flesh of the Spirit. We should know the flesh of the Spirit. तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं 20-19 पढ़ेंगे, 5 का 19। 19 read. हम पढ़ते हैं गलातिया 5 का 19। अभी हमने पढ़े पवित्र आत्मा के फल, अब हम पढ़ रहे हैं शरीर के काम क्या है, शरीर का फल, शरीर के फ्रूट्स क्या है। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात पहला व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला, घृणा और इनके जैसे जैसे और काम है। इनके विषय में तुमसे पहले ही कह देता हूँ आमीन, कि जैसे पहले भी कह चुकी, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। आमीन। आमीन। See, this is the flesh of the Spirit. ये यहाँ पर है कि शरीर के काम क्या है, This is the spirit of flesh, Satan's कि fruit. मतलब शैतान के काम क्या है। This is 22 is the fruit of the Holy Spirit. 5 का 22 में तो हमने पढ़ा पवित्र आत्मा के फल क्या है। See, the two are completely different. आप देखो 5 का 22 और 5 के 19 में जो वचन लिखे हैं So, what you are carrying, अब आप अपने जीवन में खुद देख सकते हैं कि आप fruit you have. कौन से फल लेकर घूम रहे हैं। You have the flesh of the Spirit. क्या में आपके जीवन के अंदर शरीर के काम है, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन। God is telling us very तो clearly. परमेश्वर क्या कह रहे हैं So, these are the flesh of the Spirit. कि यहाँ पर शरीर के काम है, And these are the fruit of the Holy Spirit. और आपने पढ़ा 5 के 22 में पवित्र आत्मा के काम है। If you have this kind of flesh of the लेकिन Spirit, अगर आप 5 के 19 की तरह गंदे काम और लुचपन और झगड़ा, व्यभिचार, गालियां ये सब आपके जीवन में है, and repent, तो पश्चाताप करें। ask the Lord to come. परमेश्वर से बोले, परमेश्वर चीजों को अपने जीवन से निकाल दे। Amen. आमीन। And then another thing, the role of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का महत्व, And he will, the Spirit will believer to give the gift, और पवित्र आत्मा आपको तोहफा देती है, वरदान देती है, the gift. तोहफा देती है। This is his role. ये पवित्र आत्मा He काम will है। come वो आएगी, and he will not come with the empty. वो खाली है, पवित्र आत्मा नहीं आती, He come with the fruit. वो आपके फल And लेकर he come with the fruit gift. और तोहफे लेकर वरदान लेकर आती है। How many people say I don't like gift? कितने लोग कहते हैं मुझे गिफ्ट लेना अच्छा नहीं Or लगता, how many people say I love gift? कितने लोग कहते हैं इनको गिफ्ट अच्छा लगता I love gift. है, सबको गिफ्ट लेना बहुत I say no मेरा को मत देना, लेकिन अंदर हम खुश होते हैं, है ना? दूसरा गिफ्ट देते हैं, हम मना करते हैं, लेकिन अंदर तो बहुत खुशी होते हैं, है ना? ये सच्चाई है ना? सच है। So everyone love a gift. तो हर किसी को तोहफा देना बहुत अच्छा लगता है। And when somebody give you clothes, somebody give you food, somebody give you, this is a words of gift, somebody giving to me. तो 500 वैसे किसी ने घड़ी भी तोहफे में दी, Say नहीं मत देना, लेकिन लेते हैं ना, अंदर तो बहुत, अरे यार, है ना? So everyone love तो gift. हर किसी को तोहफे बहुत अच्छे लगते हैं। So the Holy Spirit when he come, तो पवित्र आत्मा जब आती he है, bring gift. वो तोहफे लाती है, He didn't come with empty handed. खाली हाथ नहीं आती। So what is the gift? तो तोहफे क्या है? His gift, the world cannot get it. पवित्र आत्मा जो तोहफे आपको देती है, जो वरदान देती है, वो कहीं आपको दुनिया में नहीं मिलते। The gift of the Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा के जो You फल हैं, cannot buy million crore diamond. आप उनको लाखों करोड़ रुपए देकर भी नहीं ले सकते, Only the Holy Spirit can give सिर्फ you. पवित्र आत्मा ही दे सकती है, Freely. वो भी मुफ्त में। When you believe in Jesus Christ. जब यीशु विश्वास करते हैं, When we receive gift. जब वो तोहफा है, वरदान We are मिलता not है, free. वो मुफ्त में नहीं। We buy somewhere. अगर हम कोई भी तोहफा लेते हैं तो उसके पैसे खर्चने पड़ते हैं। And you buy gold का नहीं तो लाख spend करते हैं. So the Holy Spirit come with a gift. तो पवित्र आत्मा भी हमारे जीवन में फलों के साथ And that gift you cannot buy if you sell the whole world also you cannot buy. और वो वरदान या वो तोहफे जो आपको मिलते हैं, उनको आप कितने लाखों रुपए खरीदेकर भी So आप नहीं what खरीद is the सकते। gift of the Holy तो Spirit? पवित्र आत्मा के वरदान क्या है? Let us turn to the Ephesians. खोलते इफिसियों की किताब
The gift of the Holy Spirit is a supernatural power. He will come with the gift of some will be prophet, some will be a teacher, some will be a counselor, and some will be that part you read it? Okay, wait. I have so many that place. There is so many things are written here. But the gift of the Holy Spirit, He will come with a. Okay, don't read to the Ephesians. Come to the 1 Corinthians chapter 12. पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय Ephesians also there. Some will be the apostles, some will be the prophet. But let us read 1 Corinthians. यहाँ पढ़ रहे हैं हम आत्मिक वरदानों के बारे में, मतलब पवित्र आत्मा के तोहफे है, पवित्र आत्मा के वरदान। 1 Corinthians chapter 12, 11 to 7 to 11. हम पढ़ते हैं पवित्र आत्मिक वरदान पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 7 से 11 तक पढ़ेंगे। पेज नंबर 238, 238 पेज नंबर नया नियम। पहला कुरिन्थियों 12 का 7। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी करने की, किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। Amen. See, when the Holy Spirit come, He'll come with a gift. तो जब पवित्र आत्मा आता है तो अलग अलग वरदान लेकर आता है। Before you didn't have wisdom. पहले आप में बुद्धि नहीं होती। So when you believe in Jesus लेकिन Christ, जब यीशु विश्वास करते now you हैं have a wisdom. तो बुद्धि आ जाती है। See, without wisdom, बिना बुद्धि के people are perishing. लोग देखो अब नष्ट हो रहे हैं। With the knowledge, लेकिन सिर्फ ज्ञान से, without wisdom, बुद्धि ना हो knowledge are nothing. तो ज्ञान भी कुछ नहीं। But when you have wisdom, लेकिन जब आपकी बुद्धि होती है, your knowledge, आपकी समझ, you can rule the world. आप इस दुनिया पे काम कर सकते हो। So only the person who have the Holy Spirit, तो जिस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा होती है, the first gift Holy Spirit gives तो to us, पहला वरदान जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में डालती है the wisdom. वो है बुद्धि। See, many people they are not going to education school. आज आप ये देखो, आज बहुत सारे लोगों जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं कर They रहे have हैं, a wisdom. पर बुद्धि उनमें बहुत ज्यादा होती है। Wisdom to build a house. घर बनाने की बुद्धि है उनमें, Wisdom to do खेती. खेती करने की बुद्धि है, Wisdom to do not to say do this. ये समझाने की, ये करो मत करो, ये समझाने की बुद्धि है। That wisdom खुद जाते हैं. Wisdom are there. Sometimes I see when we move with people, when we stay with people. तो बात से कहीं जब मैं लोगों के साथ रहती हूँ, बाहर जाती हूँ, मिलती हूँ, Sometimes people are not having wisdom. कई बार लोग देखने में बड़े ज्ञानी और स्मार्ट होते हैं, लेकिन बुद्धि उनमें होती What नहीं to है। do, not to do. कोई प्रॉब्लम है, क्या करना पता नहीं, ऐसे कुछ नहीं करते पता। Do that one. क्या? सब करेंगे थोड़ा, लेकिन wisdom होता है ना, आप ये करो तो आपको आइडिया आता है कैसे फुल अच्छा से करना है। एक इंसान का रोल देंगे, रोल मतलब ना without making, they will give you into your hand. जैसे मान लो किसी इंसान ने आपको एक रॉ चीज दे दी, मतलब जैसे एक मिट्टी का खट्टी मिट्टी दे दी, They will give you plastic. मान लो आपको प्लास्टिक दे देंगे बहुत सारा, Then the Lord, the Holy Spirit will give you wisdom. तो पवित्र आत्मा को बुद्धि देगी कैसे इन प्लास्टिक को क्या करना है। कोई इंसान आपको सिखाने की जरूरी नहीं है। वो पकड़ लिया फुल, ओके, ये प्लास्टिक से मैं फुल बना सकता है, रोज बना सकता है, और मेरीगो बना सकता है, सनफ्लावर बना सकता है, ऑस्टिक बना सकता है। और वो प्लास्टिक से मैं बिजनेस कर सकता है, पैसा कमा सकता है। इस सारे आइडिया आता है, लेकिन उनके पास विजडम नहीं है। ई दिया, पका लिया, कुछ नहीं होता। गरीब तो गरीब, सफर तो सफर, उनका पास तो है लेकिन बुद्धि नहीं है कैसे करना है। बुद्धि नहीं है उनके पास, नॉलेज तो है लेकिन बुद्धि नहीं है कैसे बिजनेस करना है। बुद्धि नहीं है कैसे शादी को, हस्बैंड बच्चा लोग को कैसे हैंडल करना है। बुद्धि नहीं है चर्च को कैसे हैंडल करना है। बुद्धि नहीं है इंसान को कैसे ठीक करना है। ये चीज इंसान आपको ही नहीं करेंगे, आपको रोल देंगे, आपको एक सिर्फ प्लास्टिक देंगे, लेकिन आपको बुद्धि से आप बहुत ग्रेट मैन एंड वुमेन ऑफ गॉड कर सकते हैं। That is the wisdom. तो यही बुद्धि है। So today many people they have qualification, degree but no wisdom. आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बड़ी-बड़ी पढ़ाई लिखाई तो है लेकिन बुद्धि नहीं है। They're sitting वो बैठे तो हैं and so many things wasted. और बहुत सारी चीजें वो सब बेकार हो रही हैं। So many people they are in the tomb buried, you know. आज आप देखो बहुत सारे लोग हैं जो कब्र में पड़े हैं, दफना दिए गए हैं। They're full of power, authority that God has given. They didn't have wisdom. They buried together. उनके अंदर परमेश्वर ने सारी खूबियां डाली थी, टैलेंट डाले थे, लेकिन बुद्धि नहीं थी तो कुछ नहीं किया, मर गए ऐसे ही। So with your wisdom तो आपकी बुद्धि that God has given to जो you, परमेश्वर ने आपको दी है, you become excellent.
extraordinary. अपनी बुद्धि के द्वारा ही हम एक असाधारण व्यक्ति बन जाते हैं। Then people say, great, wow, this person is great. तब लोग कहते हैं अरे भाई बुद्धि इंसान में तो अलग ही बुद्धि His है। ministry is becoming great. देखो इसकी सेविका तो कितनी His ऊंची church है। is growing. इसका चर्च देखो, All the business is growing. इसका व्यापार देखो, All the job is blessed. इसकी नौकरी देखो, The वाह। marriage, the family is so इसकी wonderful. शादी को देखो, परिवार को देखो कितना अच्छा चल रहा है। And the children are great. इनके बच्चों को देखो कितने अच्छे हैं। Because of the wisdom that you have, you're functioning. ये बुद्धि जो आपके पास है उस बुद्धि को आप चला रहे So हो। the wisdom comes from only Holy तो Spirit. बुद्धि सिर्फ पवित्र आत्मा से ही आती है। But Satan is a foolish. पर शैतान तो बेवकूफ है। When the Satan comes, जब शैतान आता है the person becomes वो foolish. इंसान बेवकूफ हो जाता है। Drink. शराब पी Doesn't know where is their home. उसे नहीं पता घर कहाँ है, Sleeping in the रोड road. पे सो He जाएगा, doesn't know how to clean. उसे सफाई रखनी नहीं आएगी, They become live like a puzzle. पागलों की तरह जीवन जिएगा, They are foolish. बेवकूफों की तरह। That is the Satan. वो शैतान का काम है। But when the Holy Spirit लेकिन comes, जब पवित्र आत्मा आता है you will never live and naked in the outside तो of आप your नंगे house. होके कभी घर के बाहर घूमने नहीं You will जाओगे, never make your children hungry. अपने बच्चों को भूखा नहीं रखोगे, You will not make your house rich, you know. What is that? ना टूटा तो फटा गाना घर नहीं बनाएंगे। आपको बुद्धि से यूज करके कैसे तरफ से मेरा घर डालना है। So there is the things that wisdom carried by Holy Spirit. तो बुद्धि सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही आती That है। is why you see people, तो इसलिए आप लोगों को जब मिलते हो, people who know God, जो लोग प्रभु को जानते हैं, people who don't know जो God, प्रभु को नहीं जानते, you bring together. आप उनको साथ में लाओ, They are completely different. आप देखो उनको बिल्कुल अलग होते हैं। I see many a time. पासीगरी में बहुत बार देखा है, Hindu people come. आप जब हिंदू लोग आते They हैं don't know how to behave. उन्हें तरीका भी नहीं है बात करने का। इंसान का भी हम बात करते भी चिल्लाते हैं, बुलाते हैं इधर उधर, और गैसाइस में भी, और ऐसा बैठा भी। वह हम का पास हो है, कोई जगह भी चलो हम डिसिप्लिन हैं। कैसे तरफ से इंसान को बात करना है, इज्जत देना है, रेस्पेक्ट देना है। All these things no need to teach. तो ये सारी चीजों के लिए किसी को सिखाना नहीं पड़ता, The wisdom come out. क्योंकि बुद्धि आती है पवित्र आत्मा के Then the द्वारा। person become disciplined तो themselves. वो व्यक्ति अपने आप को खुद ही अनुशासित कर लेता है। But if the person didn't have wisdom, लेकिन किसी व्यक्ति के अंदर बुद्धि नहीं है, that's why you all also same thing. और इसलिए कि हम सबके जीवन में भी ऐसा ही है। Before, पहले हम you कैसे don't थे? know your Jesus Christ. पहले जब हम यीशु को नहीं जानते थे, All the people, सारे हम सब लोग ही how you live. हम कैसे जीते थे। I can tell everyone house whom I know. पास्टर कह रहे जितना वो जानती हूँ उन सबके बारे में बता सकती हूँ पहले कैसे थे और अब कैसे। Before you first coming to the Lord, जब नए नए प्रभु में आए when थे, I first meet, पास्टर जब पहली बार मिली थी, now your life और अब आपकी लाइफ completely different. बहुत अलग है। You also see, right? आप भी अपने जीवनों में फर्क देखते हैं। पहले मैं first आप लोग का घर जाता था, कहाँ खाना पीना है, कहाँ पूरी देना है, कहाँ जब बैग में देते हैं वैसे डाल के। ये कहाँ से बोधी नहीं है, चेयर है, टेबल है, नहीं डालता। अब पास्टर बैठो बेड पे ये बोधी कैसे बात बेड में सोना है? No, your bed is for sleeping. एक बिस्तर तो सोने की जगह है। And then I see many house and like cup is that a steel cup. स्टील के जो ग्लास होते हैं, They put here after drinking सब लोग steel cup को पिया करते हैं। स्टील के ग्लास में लोग चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं। So steel cup is here. Then you remove it. Only that area clean, all dirty. So many dirty dust and all the container dust, all the kitchen dust. खाना बनाते हैं सारे इधर you know मसला। मैं तो जाता ये क्या है? सफाई क्या? बुद्धि नहीं है। All the खाना पीना प्लेट, चावल, दाल, आटा। अभी तो आप लोग लाई जाओ, ले जाएंगे सारे सफाई करके ढंग से। They are having money. तो पैसा तो है, ऐसा नहीं है पैसा नहीं है, They have money. पैसा तो होता है, They have a house. घर भी है, But no wisdom. पर बुद्धि नहीं होती How to maintain? कि कैसे साफ सुथरा रहना है, How to live? How to keep a kitchen? कैसे किचन को एकदम साफ रखना How है, to clean your bed? कैसे बेड को साफ रखना है। But these things are no wisdom. लेकिन ये सब चीजें बुद्धि के द्वारा ही होती है। So when the Holy Spirit comes, तुझे पवित्र आत्मा आती He है, will teach you वो आपको सिखाएगी how to cook, कैसे खाना how to बनाना wear, है, कैसे पहनना how to है, clean, कैसे साफ where रखना to है, put. कहाँ रखना है, Everything be organized. हर एक चीज सही जगह पे रखनी है। Before you don't know God, पहले प्रभु को नहीं Satan जानते, mess up your शैतान life. आपके जीवन को गंदा रखता था। मम्मी भी मालूम है, हम एक बिल्डिंग में रहते हैं, है ना? हिंदू लोग रहते हैं, स्टूडेंट लोग, क्रिश्चियन लोग रहते हैं, अलग कंप्लीटली डिफरेंट है। हिंदू लोग बच्चा लोग रहते हैं, गंदा
इधर उधर। क्रिश्चियन लोग रहते हैं, अच्छा से सफाई, लड़का भी। हम लोग का बिल्डिंग में है, मैं ऊपर जाते कभी भी। लोग हिंदू लोग हैं, प्रभु को मालूम नहीं है, टाइम है, खाते पीते सोते। वो लोग का घर इतना गंदा, मैं तो क्लीन करा क्या, पानी लगा। So that and then when the Christian people living there, और जहाँ पर मसीह लोग रहते they हैं, have nothing to say. हमको कहना नहीं पड़ता, They are men. चाहे वो आदमी क्यों ना हो, They keep the वो things चीजों को right, सही तरीके से रखते हैं, organized. सही तरीके से। That is how the wisdom come तो from. वहीं से बुद्धि आती है। There is why many people इसलिए बहुत लोग who don't know जो God, प्रभु को नहीं जानते, they have knowledge, उनके पास ज्ञान they तो have है, position, पोजीशन भी they है, have power, पैसा भी they है, have building, बिल्डिंग भी है, but they have no पर wisdom. बुद्धि नहीं है। You go to this upper. बाहरों इतना गंदा, मैं आते कभी भी। They have a building, तो बिल्डिंग तो है, but इतना गंदा. Because all these are the wisdom you need to function in your क्योंकि brain. आपको बुद्धि चाहिए काम करने की। So the Holy Spirit come, तो जब पवित्र आत्मा आती है, you will bring wisdom. तो आपको बुद्धि लाती है, Then you will organize तो आप everything चीजों को सही तरीके से रखने लग in जाते हैं, proper way. Then you will have good health. तो आपको अच्छी सेहत मिलती Then है, you will have good life. एक अच्छा जीवन मिलता है। And then also what will He bring? He will bring wisdom. तो पवित्र आत्मा बुद्धि लाती He will है, bring knowledge. समझ He will लाती है, bring faith. He विश्वास will लाती है, bring healing, चंगाई लाती है, miracle, चमत्कार लाती है, prophecy, भविष्यवाणी discerning लाती है, spirit, आत्मा को पर and speaking in tongue. और अन्य भाषा का ज्ञान लाती See, all these things है। ये सारी चीजें are carried by the Holy ये Spirit. पवित्र आत्मा के वरदान हैं, These are the key. ये आत्मिक वरदान है। You cannot buy these things in the world. आप दुनिया में एक चीज खरीद नहीं You सकते, cannot buy wisdom, knowledge, faith, healing, miracle, science, wonder in university, PhD. You can't able to get the power of healing. आप बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, पीएचडी भी कर लो, लेकिन आप चंगाई को, छुटकारे को, वरदानों को, अन्य भाषा बोलने को, भविष्यवाणी को, इनको खरीद नहीं सकते हैं। All these things carried by the Holy ये Spirit. सब चीजें सिर्फ पवित्र आत्मा की शक्ति So की when the वजह Holy से Spirit come upon you, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आती है, you become heal the people, आप लोगों को चंगाई करने लग जाते cast हो, out the demons, बुरी शक्तियों को निकाल देते raise हो, the dead, मरे को जिंदा कर देते हो, supernatural, एकदम नए हो become जाते हो, powerful. सामर्थ्य आ Oh, जाता है। people say, wow, this person is powerful. अरे इस इंसान में ताकत है, We are not powerful, बासिकली हमें but the ताकत नहीं, Holy Spirit, पर पवित्र आत्मा का, His power, पवित्र आत्मा का come out in our life. हमारे जीवन में आता है। That is the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा है, This is the key. ये तोहफा So है। when you believe in Jesus Christ, जब यीशु में विश्वास He will करते हो, come with the wisdom. वो बुद्धि के He साथ, will give you wisdom. वो बुद्धि He देती will है, give you faith. वो विश्वास देती है, Faith in Jesus Christ. यीशु में He विश्वास, will give you a miracle. वो चमत्कार देती है, He will give you to cast out demons. ताकि आप बुरी शक्तियों को To निकाल heal the पाए, sick. चंगाइयाँ कर Pray पाए, for people. लोग के लिए प्रार्थना In the कर name पाए, of Jesus. कि यीशु के नाम में People are healed. लोग ठीक होते People हैं, are delivered. चंगाइयाँ पाते These हैं। are the work of the ये Holy Spirit. पवित्र आत्मा का काम है, This is His role. ये तो काम है, But लेकिन in the name of Jesus, कि यीशु के नाम में we receive this. हम इन चीजों को पाते हैं, Not in the name of Holy Spirit. पवित्र आत्मा के नाम से नहीं पाते। We never said in the Holy Spirit name, हम तो ये Amen. नहीं बोलते कि ये पवित्र आत्मा के नाम से कहते हैं आमीन। Everything that you do, जो भी आप करते हैं, in the name of Jesus. करते हैं यीशु के नाम में। When we say in the name of जब Jesus, कहते हैं यीशु के नाम में, you devil come out, तो शैतान निकल जा, you sickness come out, बीमारी निकल जा, then the Holy Spirit तो पवित्र आत्मा move काम करती है and the Satan come और out. शैतान निकल जाता है। That is the work of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा का, This is the role of the Holy ये Spirit. पवित्र आत्मा का So when काम है। the Holy Spirit come upon you, जब पवित्र आत्मा के you ऊपर will आती be है, filled with wisdom. आप पवित्र आत्मा You से- will be filled with आप knowledge. सामर्थ्य You से will fill with भर faith. जाते हो, आप विश्वास से You भर will जाते be हो, filled with power. आप सामर्थ्य से भर जाते हो, Healing, चंगाइयों से, miracle, चमत्कारों से, signs, विज्ञान wonders. से, And you become different. और आप दूसरों से अलग हो जाते हो। All these things, ये सारी चीजें money cannot buy. पैसों से नहीं मिलती। People will say, oh pastor, maybe healing चाहिए मेरे को 1000 ले लो, मेरे को दे दो. हम नहीं दे सकता. You know? All these are the Holy Spirit. ये सब पवित्र आत्मा का काम है। So these are the, when you have Jesus, तो जब आपके पास यीशु होता है, the Holy Spirit functioning. तो पवित्र आत्मा काम, This is His role. ये सब काम है। Amen. आमीन। God is good. All the time। And then also the Holy Spirit, तो पवित्र आत्मा He is the seal. Seal means seal. तो मोहर है, Seal is very important. तो मोहर बहुत जरूरी है। Prime Minister seal आप ये देखो, प्रधानमंत्री की सील मतलब उसकी मोहर is very important. बहुत जरूरी होती है। If you say something, अगर आप कुछ बोलते हैं if the Prime Minister seal in your paper, और उस पेपर के ऊपर प्रधानमंत्री का छाप
लग जाए, nobody cannot deny. कोई मना नहीं कर सकता। They need to do something in your life. करना पड़ेगा कुछ ना So कुछ। the Holy Spirit seal us. तो पवित्र आत्मा ऐसे हमारे जीवन में What मोहर will seal लगाती है। us? किस चीज की मोहर लगाती है? He will seal you that you are the sons and daughters वो of आपको God. परमेश्वर के बेटा बेटी होने की मोहर लगाती है। And then you will say that I am the child of तब God. आप बोलते अपने आप को कि आप परमेश्वर की संतान हो। That is the role of the Holy ये Spirit. पवित्र आत्मा काम है। Until and unless the Holy Spirit come upon जब तक you, पवित्र आत्मा आपके ऊपर ना आए, you will never know that you are the believer. आप कभी नहीं समझ पाओगे कि आप एक विश्वासी हो। Many people say, I believe, I'm a Christian. बहुत लोग अपने को क्रिश्चियन तो बोल देते हैं, मसीही तो बोल देते But हैं, I don't know my salvation. पर पता नहीं उद्धार मिला कि नहीं I will go to heaven or not. पता नहीं स्वर्ग जाऊंगा They are कि नहीं confused. जाऊंगा। वो confused है। But when you accept लेकिन Jesus जब यीशु Christ, को अपना लेते हो, the Holy Spirit तो पवित्र will आत्मा convict you वो आपको बार-बार कन्विक्ट करती that है you are the son of कि God. हाँ परमेश्वर And के you बच्चे will हो inherit God's और तुम kingdom. परमेश्वर के राज्य में जाओगे ही And जाओगे। then Bible says, और बाइबल कहती है nobody cannot take away from the hands of God. और कोई भी आपको परमेश्वर के हाथों से बाहर नहीं निकाल You सकता, are sealed by the क्योंकि blood आप of पर Jesus परमेश्वर Christ. के लहू की That you are saved. कि आप बच चुके हो, You got salvation. आपको उद्धार मिल You चुका है, got eternal आपको life. अनंत जीवन मिल चुका Nobody है। cannot take कोई away. आपके हाथ से निकाल नहीं Lucifer cannot take सकता, away. लूसीफर भी नहीं ले जा This सकता, is the role of the Holy Spirit. क्योंकि ये पवित्र He will आत्मा come and seal in your life आएगी और आपके जीवन में मोहर लगाएगी that you are the son of God. कि आप परमेश्वर की संतान And you हो will inherit the God's और आप kingdom. परमेश्वर के राज्य में जाओगे। So a little bit long, but I want to complete. There is so many roles. बहुत सारे रोल हैं, I write down and then more than that, but I just want to finish so that in the future I don't know I will speak again and all. So now the Holy Spirit, we are sealed by the Holy Spirit. This तो is हम His पर role. पवित्र आत्मा की मोहर लगी है And the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा He will make us more like Christ. और पवित्र आत्मा क्या करती है, हमें यीशु मसीह के जैसा बनाती है। How much you want to become like Christ? कितना आप यीशु जैसा बनना चाहते हैं? Paul said, imitate me. पौलुस तो कहता है कि मेरी सी चाल चलो, I imitate क्योंकि God. मैं यीशु की चाल चलता हूँ। So Bible says, imitate God. तो बाइबल बताती है आपको यीशु की चाल चलनी है। How can you imitate God? कैसे आप यीशु की चाल चल पाओगे? Many people imitate Shahrukh Khan, Amitabh Bachchan, उनका आवाज, उनका पहना, उनका गाना, उनका हेयर स्टाइल imitate करते हैं। लेकिन हम नहीं कर सकते वो imitate ना कि Shahrukh Khan imitate करते हैं। But the Bible says the children of God should imitate तो God. बाइबल कहती है कि परमेश्वर के बच्चों को परमेश्वर की सी चाल चलनी चाहिए। So how to imitate तो God? कैसे आप यीशु मसीह की When the Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर you आएगी will imitate God. तभी आप परमेश्वर की चाल चल पाओगे। How? कैसे? What kind of imitation? कैसे उनकी चाल चलोगे? You try to live a holy life. आप पवित्र जीवन उनकी तरह जीने की You कोशिश try to करोगे। be righteous. आप धर्म में उनकी तरह बनने की You try कोशिश to करोगे। forgive people. आप लोगों को माफ उनकी तरह करने की You love कोशिश करोगे। people. आप लोगों को प्रेम करने की You कोशिश forgive करोगे। people. लोगों को माफ करने की कोशिश Kindness करोगे। people. दया दिखाने की कोशिश Humble करोगे। people. नम्र रहने की कोशिश करोगे And try to help people. और लोगों की मदद करेंगे। These are the image of God. ये परमेश्वर की छवि आपके अंदर दिखाई More than the many are there. बहुत सारी चीजें हैं। So this when the Holy Spirit तो comes, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आती है you can imitate God. तो आप परमेश्वर में यीशु मसीह के जैसे But by your power, by your strength. लेकिन अपनी ताकत और अपने सामर्थ्य से How much you try to be कितनी good, कोशिश कर लो आप अच्छे बनने की, you can't be. नहीं कर पाओ, Because bad are coming out from your heart. कि दिल से तो बुरा ही बुरा निकल रहा है। How much you clean your heart, clean your body. मुंह और शरीर और बालों को तो साफ कर How सकते much हो। you go to more than 100 clothes you buy. चाहे मॉल जाके बड़े बड़े ब्रांडेड क्लोथ्स भी खरीद लो, How much you wear. कितने अच्छे पहन लो, But you try to be good. और आप सोच रहे हो अच्छा कपड़ा पहन के मैं अच्छी बन You जाऊंगी, cannot become a ऐसा good. नहीं हो पाएगा। ब्रांडेड कपड़ा पहनेंगे लेकिन गुस्सा करेंगे, गलत काम करेंगे, पिएंगे, खाएंगे, लड़की को पेड़ के सेक करेंगे, ये है। But when the Holy Spirit comes, लेकिन जब पवित्र आत्मा आती है क्या होते हैं? He will like Jesus वो Christ. कहेगी नहीं तुम यीशु के जैसे बनो, Now you become self-control. आप अपने ऊपर संयम रख Now you पाते हो, become forgive आप एक others. दूसरे को माफ कर पाते Now हो, you can become like you take away all the dirty आप अपने things जीवन से गंदगी को दूर कर पाते हो inside sin. अंदर से। So that is the role of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा का काम है, So we need that. तो हमें इसकी जरूरत है। Without Holy Spirit, बिना पवित्र you आत्मा will के never inherit God's kingdom. आप परमेश्वर के राज्य को कभी नहीं पा पाओगे। Only the Holy Spirit, सिर्फ पवित्र आत्मा He ही will reveal you वो आपको रिवील करेगी what is the way of कि God क्या है परमेश्वर का रास्ता and where to reach God, और कैसे परमेश्वर के पास जाना how है, to pray, कैसे प्रार्थना how to करनी है, worship, कैसे आराधना करनी how to है, read the Bible. कैसे बाइबल को पढ़ना है। The Bible says the word of God is God Himself. बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन खुद परमेश्वर But है। how? पर पढ़ना कैसे है? Many people said I read Bible, कई लोग कहते हैं बाइबल पढ़ता तो हूँ, but I didn't understand. समझ तो कुछ नहीं आता। But without the Holy
Spirit, लेकिन बिना पवित्र आत्मा के you will never understand. आप कभी नहीं समझ पाओगे, Because God is a Spirit. क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। So you need to have the Holy Spirit. तो आपके अंदर आत्मा होनी So चाहिए। now when you have the Holy Spirit, तो जब आपके अंदर आत्मा होती है, you become like God. आप परमेश्वर के जैसे बन जाते हैं। You will be imitate God. आप परमेश्वर की से चाल चलने लग जाते हैं। And the Holy Spirit और पवित्र आत्मा is the source of revelation. वो आपको प्रकाशन भी देती है। Without Holy Spirit, बिना पवित्र आत्मा के you will never have revelation. आपके अंदर प्रकाशन कभी नहीं आएगा। When you have the Holy जब Spirit, पवित्र आत्मा होगा, you will always revelation. आपके अंदर प्रकाशन आएंगे। Revelation means what? प्रकाशन होता क्या है? New things. मतलब नई चीजें प्रभु आपको When you सिखाएगा। read Bible, जब बाइबल पढ़ते हो, same book, किताब तो एक ही है, same chapter, एक ही चैप्टर you है, will get so many new things. आपको अलग-अलग चीज सीखने मिलती है। Or you do some work, आप कुछ काम करते you हो, will get the revelation. आपको प्रकाशन मिलता है How to do कि कैसे करना है, and how to good and how to make beautiful. कैसे चीज को सुंदर बनाना है। So the Holy Spirit, तो पवित्र आत्मा He is the source of revelation, वो आपको प्रकाशन देने का स्रोत है and He will search the deeper things. और वो आपको अंदर गहरी चीज समझाती है। Holy Spirit search the deeper things. पवित्र आत्मा हमेशा गहरे में बात करती है। Satan will never search the deeper things. शैतान कभी गहरे में बात नहीं। So when you have Holy तो Spirit, जब पवित्र आत्मा होती है, He will know deeper God. वो समझाएगी आपको परमेश्वर गहरे रूप से। People will, if you say so, people cannot understand. आप समझाओगे लोग नहीं समझ That पाएंगे। is why sometimes we talk about God. इसलिए पास कई बार हम प्रभु की बात करते हैं। People who don't know God, जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, sometimes we are struggle. उनसे बात करने में They are not परेशानी है। receiving. वो पा नहीं पाते। They are not, when you fell it in the banana leaf, the water come out. तो जैसे अभी केले के पत्ते में पानी डालो तो पानी नीचे गिरता जाता है, अंदर नहीं So जाता। banana leaf did not receive the तो water. मतलब केले के पत्ता पानी नहीं पी पाता। But sometimes when you share the gospel, ऐसे जब लोगों में you सुसमाचार are just करते हो, putting the banana कई बार or लगता है पत्ते के ऊपर पानी डाल रहा हूँ, Oh, कुछ नहीं I जा don't रहा, अंदर कुछ नहीं जा रहा। green. But when you people who know God, लेकिन जो लोग प्रभु को जानते हैं, जब when you share जब gospel, आप उनसे प्रभु की बात करते हैं, you both are connected आप उनसे एक आत्मा हो जाते because हैं, you both are same spirit क्योंकि सेम स्पिरिट है and you got more power. और हमको और बात करना अच्छा लगता है, आप करते जाते हो And that is how the revelation. और इसी को प्रकाशन भी कहते हैं। So now the Holy Spirit is a source of तो revelation, पवित्र आत्मा प्रकाशन का स्रोत है। and you will search the deeper things of God. वो आपको परमेश्वर की गहरी चीजों को So if समझाएगा। you want to know God deeper, अगर आप परमेश्वर को गहरे रूप से जानना चाहते you हैं, need the Holy Spirit. हमें सबसे पहले पवित्र He आत्मा know चाहिए। who God क्योंकि is पवित्र आत्मा खुद जानती है कि परमेश्वर because कौन He है, is the क्योंकि God. वो खुद परमेश्वर So है। He know everything about तो God. वो परमेश्वर के बारे में भी So जानती He है। need to if we want to know तो God, हमें अगर परमेश्वर को समझना है, then we need Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा चाहिए। And the Holy Spirit come into your और life. पवित्र आत्मा आपके अंदर आती He है, will know about all things about वो God. आपको हमेशा परमेश्वर के बारे में But सिखाएगा। the person who don't know लेकिन God, जो व्यक्ति परमेश्वर को the नहीं person जानता, who didn't believe in जो Jesus यीशु में Christ, विश्वास करता ही नहीं, then how much he tell about the goodness of आप God? उन्हें कितने परमेश्वर के बारे में, भलाई के बारे में बताते जाओ। For them it's like a mocking. उन्हें क्या मजाक कर रहे हो? For them it's just like you're wasting your हर time. टाइम क्यों खराब कर रहे हो, इस बारे में बात कर। But when you know the God, लेकिन अगर वो इंसान परमेश्वर को that's जानता है, why in the book of Romans, इसलिए रोमियो किताब में लिखा है, Paul say, पौलुस ने क्या कहा? the people who don't know God, जो लोग प्रभु को नहीं जानते, for them is the foolish the उनके process. लिए क्रूस की बातें करना तो बेवकूफी के समान है। People who don't know God, जो प्रभु को नहीं जानते, you just saw this cross. आपको तो बोले पता है ये क्रूस क्या है? Look the pagal look at लकड़ी डालती ऐसा है वो है. People who don't know God, जो लोग प्रभु को नहीं जानते, for them is the foolish. उनके लिए चीजें बेवकूफी की बातें हैं। But people who know God, लेकिन जो लोग प्रभु को जानते हैं, the cross is the power. तो क्रूस में सामर्थ है। God giving us the victory परमेश्वर हमें सामर्थ देते हैं on the cross. क्रूस पर। God has given us. परमेश्वर ने हमें दिया है, He took our curse, our sin, our bondage उसने हमारे श्राप, हमारे बंधनों को जो सारे ले लिया है on the cross. क्रूस पर। That is why the cross become the power. इसलिए क्रूस में सामर्थ है। Through the blood of Jesus Christ यीशु on के the लहू cross, के द्वारा you are saved. आप बच जाते So हो। the people who know God, तो जो लोग प्रभु को जानते the हैं, cross is the power. तो क्रूस में The सामर्थ cross है, is the victory. उसमें सामर्थ है और जय है। Amen. आमीन। So that is why today we are talking about the role of the तो Holy आज Spirit. हम पवित्र आत्मा के महत्व और उनके कार्यों की बात कर रहे हैं विश्वासी की So जीवन when you में। have the Holy तो Spirit, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होती है, He is the source of revelation, तो वो प्रकाशन का स्रोत है। and He is the fruit of the Spirit He carry. तो पवित्र आत्मा के वरदानों को वो लेती है। And when you know लेती है। and then to have the Holy Spirit, तो पवित्र आत्मा होने के I लिए, say repeat again, तो पास्टर बता रहे हैं because some दोबारा, people are new just coming enter, so you don't know what we are talking about. तो कुछ लोग अभी ही आए और वो नहीं जानते कि पास्टर क्या समझा So रहे today हैं। we are talking about our topic is the role of the Holy तो Spirit. आज हम पवित्र आत्मा के महत्व की बात कर रहे हैं। So the Holy Spirit, तो पवित्र He आत्मा provide वो देती है,
guidance, गाइड करती है, support, सपोर्ट करती है, comfort. कंफर्ट मतलब आराम देती है। That is His role. इसका काम है। When you are weak, जब कमजोर होते हैं, Holy Spirit, पवित्र He आत्मा will strengthen वो you. आपको मजबूत करता When you are broken, है। जब दिल टूटता है, Holy Spirit, पवित्र आत्मा He will comfort वो you. आपको आराम देता When है। you are lonely, जब अकेले होते हैं, Holy Spirit, पवित्र आत्मा He will comfort वो you. आपको फिर He will कंफर्ट support you. वो सपोर्ट करेगा। That is His role. ये सब काम है। But when you didn't have God, अगर परमेश्वर ही नहीं, you become first. That is why today many people, इस टाइम बहुत सारे लोग they are suicide वो आत्महत्या when करते they हैं। are failed, जब वो when फेल हो they जाते broken हैं, heart, जिनका दिल टूट जाता when है, they become nothing, जब उन्हें कुछ रहता ही नहीं, because there is no comfort, क्योंकि अंदर कंफर्ट नहीं है, there is no strength, कोई सामर्थ्य नहीं there है, is no support. सपोर्ट भी नहीं है। All these things come from the Holy ये सब Spirit. चीज सारी पवित्र आत्मा से आती है। When we have God, जब परमेश्वर होता है, you didn't have house, घर ना you भी didn't हो, have money, पैसा ना भी हो, you are sick, आप बीमारी क्यों ना हो, but we have a comfort. लेकिन फिर भी आराम होता है। We strengthen अपने ourselves. आप को मजबूत कर We पाते have a हैं, hope. उम्मीद होती We है, will not die. हम मरेंगे I will नहीं, have one day एक house. दिन घर होगा, I will be fine one day. एक दिन अच्छा होगा। All these things are the work of ये God. सब सारी चीजें परमेश्वर की पवित्र So आत्मा we का काम है। only the true Holy Spirit. तो सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा We ही receive guidance. हमें अगुवाई मिलती है, We receive conviction. हमें कन्विक्शन मिलती है, Conviction that you are a sinner. आपको पता चलता है कि हाँ मैं पापी हूँ। Without the Holy Spirit, जब पवित्र आत्मा नहीं होती many ना, people say मैं तो काम नहीं करता, मैं तो क्या है? Righteousness. मैं बहुत धर्मी हूँ, ऐसा लोग कहते हैं जब तक पवित्र आत्मा नहीं होती। But Bible say, लेकिन बाइबल कहती है, if you declare yourself that you are not a sinner, बाइबल में लिखा है कि अगर आप अपने आप को कहते हो कि मैं तो अक्सर पाप ही नहीं you किया, are a liar. तो तुम झूठे हो सबसे We बड़े। always committing हम sin. हर रोज ही पाप करते तो हैं, Our thought are wicked. दिल से मन से Our mind are wicked. हमारे दिमाग पे Our imagination are हमारी wicked. कल्पनाएं भी बुरी How होती can हैं। you say that I'm आप righteous? कैसे कह सकते हो आप धर्मी हो? Even in the church you're sitting, आप चर्च में इस समय बैठे हुए हो, you are looking at me. देख तो पास्टर को रहे हो, You thought. पर सोचो दिमाग में क्या Your चल रहा है, imagination. आपकी सोच क्या चल रही है। Sometime in your home, घर में बैठे हो, sometime in sex, कभी sometime in व्यभिचार के बारे में, drinking. कभी शराब के बारे में। We are wicked. कितने बुरा है हम लोग, But the Bible says, पर बाइबल when the कहती Holy है, Spirit लेकिन comes, जब पवित्र आत्मा आती He है, will convince you वो आपको ये बताती है, एहसास दिलाती है कि हाँ मैं पापी हूँ, to be repent कि हाँ मुझे पश्चाताप की जरूरत है, and to be cleansed मुझे up. साफ होना पड़ेगा। This is the role of the ये Holy पवित्र Spirit. आत्मा हमें कन्विक्शन देती है। So unless लेकिन जब तक you are not believing आप Christ, यीशु विश्वास न करें, you will never know that you are a sinner. तो आप कभी नहीं जान पाओगे कि आप पापी हो। And you will never know that you will go to hell. आप नहीं जान पाओगे अरे मैं तो नरक भी जा सकती हूँ। When you have the Holy Spirit, लेकिन जब पवित्र आत्मा होगी, He will tell you वो आपको बताएगी, there is a hell, अरे नरक भी है there भाई, is a Satan. शैतान भी होता there is है, a God. परमेश्वर भी होता है। Without Holy Spirit, बिना परमेश्वर many के people didn't believe Satan. बहुत सारे लोग आज कहते हैं शैतान थोड़ी होता है, Many people didn't believe ghosts. वो कहते हैं भूत भी नहीं होते, Satan is real. शैतान होता है, Satan is real. शैतान होता है। That is how when the Holy Spirit comes, तो जब पवित्र आत्मा आती है, He will convict you. तो वो कन्विक्ट करती है, There is a hell. अरे नरक है भाई। People who didn't believe, जो लोग विश्वास they नहीं will go to करते, hell. वो नरक में ही People who जाएंगे, believe, जो विश्वास they करेंगे, will go to heaven. वो स्वर्ग जाएंगे। You just tell to the people who don't know जो God, प्रभु को नहीं जानते उनको बताओ स्वर्ग नरक you होता है, just tell them hell. उन्हें बुरा पता है नरक में जलोगे तुम जाके, They will say, what is hell? We don't बोले know. नरक थोड़ी होता है, यही They will जगह say, है। I am not criticizing Hindu, तो पास्टर कह रही है मैं हिंदू लोगों के बारे में गलत नहीं बोल रही हूँ, but they are innocent. पर वो लोग बहुत मासूम है, उनको पता नहीं है, They don't know what is the afterlife after death. उनको नहीं पता है कि मरने के बाद का जीवन क्या है। They say after you die, वो कहते हैं मरने के बाद you reborn again. दोबारा पुनर्जन्म होगा। You become red, you become cow, you become kutta. वो कहते हैं 33 करोड़ मतलब बहुत सारी योनियां हैं और वहाँ पर अलग अलग योनि में तुम पैदा होगे, Because they don't know. क्योंकि वो नहीं जानते। But the Bible says, लेकिन बाइबल कहती when है, you dead, लेकिन जब तुम मर जाओगे, now is hell is not, we are not going. अभी तो तुम नरक नहीं गए हैं, The people who don't know लेकिन God, जो लोग प्रभु को नहीं जानते, there is a place that God has उनकी prepared. जगह रखी है परमेश्वर ने कि भाई तुमने वहाँ जाना है। People who know जो God, प्रभु को जानेंगे, there is a उनके paradise. लिए अलग से बना रखा है, पैराडाइज है। So when the God comes तो जब प्रभु आता है in the last day, अंत के दिनों में, now God will put the people who don't know God in the hell. तो जो लोग प्रभु को नहीं जानते प्रभु उनको नरक में रखे। So the Holy Spirit role, तो पवित्र when you have आत्मा, Holy Spirit, जब पवित्र आत्मा होती you है, know the end of your life. आप जान लेते हो हाँ मेरे जीवन का अंत होगा और वो कहाँ When होगा। I die, जब मैं मरूंगी I will go to heaven. मैं स्वर्ग जाऊंगी। You know it's true. आप जान जाते हो। That's what many people, और इसीलिए बहुत लोग, all the disciples, सारे चेले, the great people in the जितने Bible, महान लोग हैं बाइबल के अंदर, Daniel, दानियल, many times they put into कितने- lion den, fire. उसको शेर की मार में डाल दिया, उसके दोस्तों को आग में डाल दिया, They're never afraid.
afraid? वो फिर भी डरते क्यों नहीं? Because they are sure that God is in them. क्योंकि उन्हें पता है हाँ प्रभु मेरे अंदर है, देख लेंगे। And many, even we talk about Apostle Paul, अगर हम पौलुस की बात करते हैं, पतरस की बात करते हैं, थोमा की बात करते Saint हैं, Thomas come to India and he died. जो संत थोमा था वो भारत में आया और यहाँ पे आके मरा। He come to India in AD 52. 52 AD में आया था वो, Indian people killed the Saint Thomas. और लोगों ने थोमा को सुसमाचार करने की वजह से They मार are दिया। not afraid to die for gospel. पर उसे प्रभु के सुसमाचार के लिए मरने में डर नहीं लगा, Because they know the way is their way. क्योंकि वो जानता है कि मरने के बाद तो मुझे कहाँ जाना है। They have completely know. उसको पूरी तरह विश्वास है, Nothing to be afraid तो to death. ठहरने की कोई बात ही नहीं है मरने के लिए। तो Before I do know God, पास्टर के पहले मैं भी प्रभु को I नहीं used जानती, to be afraid to death. पास्टर के मुझे मरने से भी डर But लगता now है। when I know लेकिन God, जब प्रभु को जान गई है, anytime, any moment, अरे कहीं भी मरना maybe in the road, in the house, रोड पे या घर पे, I doesn't care. कोई फर्क नहीं Because my पड़ता। hope is, क्योंकि पास्टर के I want उम्मीद to है see God कि मैं very प्रभु को fast. देखूंगी जल्दी। I want to see God has prepared a house वो for कह रही me. प्रभु ने मेरे लिए घर बना रखा है, मुझे I really want to see. पास्टर के मैं देखने का Every मन day है। I have a hope. हर रोज उम्मीद होती है, That is the thing. तो ऐसा होना चाहिए। So that is the thing that when the Holy Spirit, तो जब पवित्र आत्मा होती He है, will convict you वो आपको ये एहसास कराती where है you are going, कि तुम कहाँ जा where रहे हो, is your end, कि तुम्हारा कहाँ अंत होगा and what is your और destination. तुम्हारा अंत कहाँ होगा। So that is the role of the Holy तो Spirit. ये पवित्र आत्मा का काम है। Amen. So let us have the Holy Spirit तो पवित्र आत्मा आपके अंदर होनी so चाहिए, that you will know the deeper things of God. ताकि तुम परमेश्वर की गहरी चीजों को समझ ले Without पाओ। the Holy Spirit, बिना पवित्र आत्मा के your Christian life आपका is मसीह जीवन incompleted. पूरा नहीं है, And with the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा के साथ your life will be completed. आपका जीवन पूरा हो जाए That you are the sign of कि God. तुम परमेश्वर के And to संतान हो। have the Holy और Spirit, पवित्र आत्मा होने के लिए you need to believe in Jesus आपको Christ. यीशु में विश्वास The करना है। day that you believe Jesus जिस दिन Christ, आपने यीशु में विश्वास the किया Holy है, Spirit will come upon पवित्र you. आत्मा आपके ऊपर आती है। The Bible says, we already say, बाइबल कहती है you come with the fruit of the Holy कि Spirit. वो अपने वरदान लेके आती है। 9 fruit. फलों को Patience, लेकर आती humble, है। self-control, wisdom, knowledge, faith, power, healing, anointing, miracle. तो पवित्र All आत्मा these जब आती are है the work of the तो Holy अपने Spirit. फलों को, अपने वरदानों को लेकर आती है। That's what the Bible says. I will not read. Jesus was anointed यीशु मसीह का अभिषेक हुआ by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। When the Holy Spirit तो जब comes पवित्र आत्मा आती है upon his life, यीशु मसीह के ऊपर, he go out and preach the तो बाहर gospel, जाते हैं और सुसमाचार बांटना शुरू कर देते हैं, heal the people, चंगाइयाँ करते cast out the हैं, demons. बीमारों को ठीक करते हैं, He was बच्चों को anointed निकालते by the Holy हैं, Spirit. क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने अभिषेक पाया था। So when you are anointed by तो the जब Holy आप Spirit, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक पाते हो, you become extraordinary आप असाधारण हो जाते because हो, he is a power. क्योंकि उसमें सामर्थ है, He is great. वो महान है। And only the Holy Spirit, और सिर्फ he पवित्र आत्मा carries ही the miracle signs and कोई wonders. चमत्कार और हमारे विज्ञान के काम करता But है। I say again, पर पासी के लिए मैं दोबारा don't कहती be misunderstood. हूँ, ये ना सोचे In the name of Jesus Christ, कि यीशु के नाम में ही only you will receive power. आपको सामर्थ मिलेगा। That power वो सामर्थ्य is the Holy Spirit. वो ही पवित्र आत्मा है। So without the name of the Holy Spirit, without the faith of the Holy Spirit, मतलब पवित्र आत्मा विश्वास के बिना, without the faith of Jesus Christ, यीशु मसीह विश्वास के बिना, without the believing of Jesus यीशु Christ, मसीह विश्वास के बिना you will not receive the power. पवित्र आत्मा ही नहीं You मिलेगी, will not receive the Holy Spirit. सामर्थ ही नहीं So आता। the first thing, तो पहली चीज you must believe Jesus. आपको यीशु में विश्वास करना है, And then second, और दूसरी चीज the Holy Spirit. पवित्र आत्मा। The day that you believe, तो जिस दिन आपने विश्वास किया He will come upon you. वो आएगी आपके जीवन And में He will dwell in you. और आपके अंदर रहेगी। And the Bible और says, बाइबल कहती है you are the temple of the Holy कि Spirit. तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। So I say in the beginning, तो पास के मेरे शुरुआत में बोला this house become the temple कि ये घर परमेश्वर का मंदिर because we are the temple. इसलिए ही कहलाता है क्योंकि आप परमेश्वर का मंदिर है और आप यहाँ बैठे So anywhere that you are तो living, आप जहाँ पर भी रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं, believe and be careful. विश्वास करें You are the temple of कि आप God. परमेश्वर का मंदिर हैं। So don't that your body don't make the idol temple. तो अपने शरीर को कभी भी मूर्तियों का मंदिर ना बनाएं। Your body अपने शरीर को don't make the temple of sickness बीमारी का घर ना बनाएं। because God is not क्योंकि created. परमेश्वर ने आपको ऐसा नहीं बनाया, But we are the temple of पर God. हम परमेश्वर के मंदिर That हैं। is why the Bible says, do you know that you are the इसलिए temple of बाइबल में God? क्या पढ़ा पहले कुरिन्थियों 3:16 के अंदर कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर की आत्मा का मंदिर So हो। when you are doing wrong तो things, जब आप कुछ भी शरीर से गलत काम करते when हो, you are doing ganda in your sharir, अपने शरीर को गंदा करते हो, God is asking you, परमेश्वर पूछता है do you know that your body is a पता नहीं temple कि of the तुम्हारा Holy शरीर Spirit? पवित्र आत्मा का मंदिर है। Your body is a church. अपने शरीर को Your body is the house of तुम्हारा God. शरीर कलीसिया है। So every day, तो हर रोज cleanse उसको yourself. साफ रखो, Live a holy life. पवित्र जीवन जियो, Righteous life. धर्मी जीवन, Obey God. प्रभु की बात मानो, Live according to the will of परमेश्वर God. के वचन के अनुसार चलो, So
that you will reach heaven. ताकि तुम स्वर्ग जाने पाओ। But without the Holy लेकिन Spirit, बिना पवित्र आत्मा के you will never reach heaven. आप कभी स्वर्ग नहीं पहुंच Because पाओगे, He is the one who carry into heaven. क्योंकि वही आपको स्वर्ग तक लेकर जाएगी। So that is a very important thing in our life. तो ये बहुत जरूरी चीज है हमारे लिए Father, Son, the Holy Spirit. कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा They are one. वो एक है, They are God. वो प्रभु है। Don't be separate. The Holy Spirit is different. Jesus is different. God is different. ये ना सोचे परमेश्वर अलग, पुत्र अलग, पवित्र आत्मा अलग। They are one. वो एक है। I already said, for example, जैसे कि head, सारा हाथ और पैर arm, तीनों है अलग leg. अलग। We are one body, तीनों का एक शरीर तो है, but function are पर different. तीन अंगों के काम अलग है। My hand work is different. हाथ का काम अलग, My leg work is पैर different. का काम अलग, My head work is सर का different. काम अलग। The Holy Spirit also. पवित्र आत्मा भी ऐसे ही। Father, Son, Holy Spirit. पिता पुत्र पवित्र They आत्मा are one. वो है तो एक, They are God, परमेश्वर है, but their personality, पर उनका व्यक्तित्व, their personality, उनका व्यक्तित्व, their work उनके काम भी are different. अलग अलग। Holy Spirit carrying power. पवित्र आत्मा सामर्थ्य की घूमती है, Holy Spirit carrying anointing. अभिषेक की घूमती है, Holy Spirit carrying the God, the heavenly kingdom. और परमेश्वर के राज्य को लेकर घूमती है। Jesus, यीशु He come as a human being यीशु बस तो इंसान बनकर आए to थे save our life, हमें बचाने के लिए, and He died. और मर गए He rose again. और दोबारा से God the Father, पिता परमेश्वर He है, is the one वो है who is the head जो सर है, and who functioning जो हर चीज पे काम करता the है universe. ब्रह्मांड And में, through the name of Jesus और यीशु Christ, के नाम के द्वारा we are saved. हम सुरक्षित We होते हैं, receive Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा मिलती है। Amen. आमीन। God